have completed with our chapter, that is periodic classification of the elements. So today we are going to proceed with the next chapter, that is chapter 10, and it belongs to the physics part of our science. Okay. So now let's see, the chapter is light and it should be covered in two subparts. First is the reflection and second part will be the refraction. In this chapter particularly, we will study the two phenomena which are related to the light. First will be the reflection of light and second will be the refraction of light. तो very firstly, because the chapter name is light itself, तो light के दो phenomena हम इसमें पढ़ेंगे. तो very firstly we should be knowing कि what is light. तो कहते हैं देखिए कि light is the form of energy which produces the sensation of sight in us. कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को अपनी सराउंडिंग्स में देख पाते हैं. Suppose you are able to see me, I am able to see you, or we can say so many other examples. We are able to see anything which is present in our surrounding. Anything which is present in our surrounding, we are able to see that. That is only because of the light. Why? Because the light falls on it, and after that it gets reflected back and comes back to our eyes, and because of that reflection of light we are able to see that particular object. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम बाद में स्टार्ट करेंगे, because in the starting we are introducing only about the light. So here what is light? It is a form of energy. क्या होता है अपने आप में? It is a form of energy which produces a sensation of sight in us. Sight मतलब देखना किसी भी चीज को, कि ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सराउंडिंग में देख पाते हैं. कि सपोज आई एम एबल टू सी दिस ब्लैक बोर्ड, यू आर एबल टू सी दिस ब्लैक बोर्ड, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट. लाइट की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सराउंडिंग में देख पाते हैं. तो देखिए लाइट के बारे में क्या है कि नेचर, अभी कुछ साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कोशिश की कि लाइट का क्या नेचर है, इसके बारे में कुछ बताने की उन्होंने कोशिश की. तो देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की हैं या अलग अलग आइडियाज उन्होंने हमारे सामने हमें बताए हैं. तो जिस साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा फेमस हुआ है उसे फिर मान लिया गया है. ठीक है. तो देखिए कुछ अटेम्प्ट्स ऐसी हैं, कुछ कोशिशें उनकी ऐसी रही हैं, कुछ साइंटिस्ट की कुछ कोशिशें ऐसी रही हैं जो उन्होंने बार बार की हैं. तो वेरी फर्स्टली here we can see the nature of light. We will study here the nature of light. तो कहते हैं different scientists gives different views about the nature of light. कि अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में अपने अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग व्यूज उन्होंने दिए हैं, अलग अलग आइडियाज उन्होंने दिए हैं. तो now let's see some of them were न्यूटन. तो न्यूटन ने प्रपोज किया है कॉप्सूल्स थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज कॉप्सूल्स थ्योरी ऑफ लाइट. तो कॉप्सूल्स थ्योरी ऑफ लाइट में ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू व्हिच द लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. वो कहते हैं कि लाइट अपने आप में छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या है, अपने आप में एक समूह है, एक ग्रुप है. तो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ we can say the small particles. कि light always consists of very small and we can say the tiny particles. कि लाइट अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉन्टिन्यूस है या कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है, नहीं. ये इसमें क्या कहना चाहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स. कि बहुत सारे पार्टिकल्स, अनकाउंटेबल पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, वी कैन से. तो हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने जो प्रपोज की वो कौन सी थ्योरी है, दैट इज कॉप्सूल्स थ्योरी ऑफ लाइट. The theory is famous with the name Corpuscles theory of light. तो corpuscles का मीनिंग यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है, small particles. कि light always consists of very small or we can say very tiny particles. ठीक है. After that there is a Huygens. दूसरे जो साइंटिस्ट हुए उनका नाम है Huygens. तो what we can say, he gives a waves theory of light. He has put forward a theory and which is famous with the name that is waves theory of light. And what he says in this theory, according to which the light consists of mechanical waves. कि light always consists, उन्होंने क्या बताया कि light always consists of the mechanical waves which always require a material medium to propagate from one place to another place. यानी अब हाइजीन नाम की जो साइंटिस्ट है उन्होंने हमारे सामने जो थ्योरी रखी है, उन्होंने थ्योरी रखी है वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट. कि लाइट जो है वो भी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. वेव्स इस तरह से होती है, ऊपर नीचे इस तरह से ट्रेवल करती हैं. तो कभी ऊपर जाती है, नीचे इस तरह से वो क्या करती हैं, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. तो हाइजीन ने यही कहा कि लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. एंड वेव्स कौन सी वेव्स, दोज आर मैकेनिकल वेव्स. एंड मैकेनिकल वेव्स उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट दे ऑलवेज रिक्वायर
रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट या मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी ये कहना चाहता है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी द एयर, दैट मे बी द वाटर और दैट मे बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, कोई मेटल भी हो सकता है, सॉरी मेटल तो नहीं हो सकता, दैट मे बी ग्लास, ग्लास हो सकता है, ग्लास इज ऑल्सो ए मीडियम। तो इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है कि वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट में क्या कहता है कि लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और इसे हमेशा ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए क्या चाहिए, इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम, यानी किसी चीज के माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। एंड दैट मे बी द एयर, दैट मे बी वाटर, दैट मे बी ग्लास, एनीथिंग इट कैन बी। Then the third साइंटिस्ट, तीसरी जो कोशिश की वो किसने की, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने थर्ड अपनी अटेम्प्ट की एंड ही मॉडिफाइड द वेव्स थ्योरी। उसने वेव्स थ्योरी में ही थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब वेव्स थ्योरी में क्या कहा गया था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्रोपेगेशन वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर प्रोपेगेट, तो प्रोपेगेट का मीनिंग होता है टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो देखिए मैक्सवेल ने क्या किया है, मैक्सवेल ने जो वेव्स थ्योरी थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया है। उन्होंने कहा था कि लाइट ट्रेवल्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वहां पर उन्होंने नेचर बताया था मैकेनिकल नेचर है, लेकिन यहाँ मैक्सवेल ने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द नेचर, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द नेचर एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहता है मैक्सवेल। तो देखो उन्होंने चेंज कर दिया, कहा तो उन्होंने भी था कि वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, बट उन्होंने क्या कहा था, मैकेनिकल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट मैक्सवेल क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए अभी बाकी दो साइंटिस्ट और भी हैं, वन इज अ मैक्स प्लांट एंड अनदर वन इज अ डी ब्रुगली, उनके बारे में हम अभी आपको नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज मैक्स प्लैंक। तो देखिए मैक्स प्लैंक क्या कौन सी थ्योरी देता है, दैट इज क्वांटम्स थ्योरी ऑफ लाइट, according to which the light consists of small packets of energy and we can say small packets, and those packets of energy are said to be the quanta. So what we can say कि according to this theory the light consists of small packets or quanta of energy and each packet of energy is said to be a photon. Each quanta या we can say each packet of energy is also said to be the photon, उसी को हम photon भी नेम देते हैं। Then last was डी ब्रुगली नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी एक थ्योरी दी। अब उन्होंने क्या किया, he told the dual nature of light. He told that light consists of we can say small particles. That was favored by the Corpuscles theory of light. It was favored by the Corpuscles theory of light. जो स्टार्टिंग में बताई थी that was the Corpuscles theory of light। और Corpuscles theory of light में क्या हुआ था, जनरली हमारे पास Corpuscles में क्या कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, की लाइट जो है ये बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बट ही फेवर्ड द सेकंड नेचर दैट वाज द वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट, एंड वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बोला था कि लाइट ट्रेवल एज अ वेव। तो डी ब्रुगली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइट का जो नेचर था वो ड्यूअल बताया, यानी ये पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती है एज वेल एज इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑल्सो। तो देखिए कैसे कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, पहले तो वेव कहता है कि लाइट जो है ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। सेकेंडली ये कहता है कि लाइट जब एब्जॉर्ब की जाती है या किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट की जाती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा या तो कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट को एमिट करेगा यानी अपने अंदर से लाइट को निकालेगा, देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पसूल्स, यानी स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में वो लाइट उससे बाहर आती है। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि डी ब्रोगली लाइट शोज द ड्यूअल नेचर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लाइट शोज द ड्यूअल नेचर, इट वर्क एज वेव आल्सो एज वेल एज द कॉर्पसूल्स आल्सो। ठीक है, तो देखिए वेव की फॉर्म में किस तरह से कहते हैं कि लाइट प्रोपेगेट एज अ वेव, कि जब ये चलती है तो वेव की फॉर्म में चलती है, वी कैन से ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, एंड व्हेन इट इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड देन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्पसूल। क्लियर है? तो देखिए अब कुछ एक टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं
जो इस चैप्टर में हम बार बार यूज करेंगे, उन वर्ड्स को हम बार बार यूज करेंगे, तो उन वर्ड्स के मीनिंग एग्जैक्टली आपको क्लियर होने चाहिए. सो हियर वी हैव डिफाइंड देम. वेरी फर्स्ट इज अ रे. कि रे क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में, बट दैट शुड बी स्ट्रेट. द स्ट्रेट लाइन थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स, दैट इज सेड टू बी अ रे. उसी को हम रे बोलते हैं. देन व्हाट इज अ बीम? कोई बीम क्या होता है? व्हाट इज अ बीम? बीम when many rays they combine together, जब बहुत सारी रेज मिलकर के कंबाइन करते हैं. सपोज इफ आई से इन दिस वे, तो देखिए स्ट्रेट तो जा रही है, जहां चाहे किसी भी डायरेक्शन में रही है, देन इट इज सेड टू बी अ बीम ऑफ लाइट. इसी को हम कहते हैं इट इज अ बीम ऑफ लाइट. व्हेन द सिंगल रेज वी कैन से सिंगल रे ट्रेवलिंग, देन इट इज सेड टू बी अ रे. जब कोई सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ हमें शो किया जाता है, दैट इज सेड टू बी अ रे. बट जब बहुत सारी रेज आपस में कंबाइन कर जाती हैं, देन इट इज सेड टू बी अ बीम ऑफ लाइट. उसी को हम बीम बोलते हैं. देन व्हाट वी कैन से द सोर्स. सोर्स क्या होता है लाइट का? एनीथिंग फ्रॉम विच द लाइट इज एमिटेड आउट. कोई भी ऐसी चीज जिसमें से लाइट निकलती है. Is it clear? Then it is said to be a source. अब कहते हैं सोर्स जो होते हैं that is of two types. दो तरह के होते हैं. One is the luminous source, another one is the non-luminous source. अब luminous source are those sources which have their own light. जिनकी लाइट अपनी खुद की होती है. They emits light. तो क्या बताया हमने कि luminous sources are those sources which have their own light, like we can say the sun. सन की अपना खुद की लाइट होती है. इज इट क्लियर? सन जब हमें दिखाई देता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स ओन लाइट. अपनी लाइट की वजह से वो हमें दिखाई देता है. आफ्टर दैट द स्टार्स. स्टार्स की जो ट्विंकलिंग हमें रात को दिखाई देती है, दैट इज अगेन वी कैन से स्टार्स दे आल्सो पोसेस देयर ओन लाइट. तो एनीथिंग विच पोजेस देयर ओन लाइट इज सेड टू बी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, टॉर्च जो होती है उनकी भी अपनी खुद की लाइट होती है. ऐसा नहीं है वो लाइट कहीं और से लेकर आ रहे हैं. इज इट क्लियर? या लाइट उन पर पड़ रही है तो हमें वो दिखाई दे रहे हैं. नहीं, दे यूज टू एमिट देयर ओन लाइट. वो अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं. सो हियर व्हाट वी कैन से, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर टू यू? Then after that, non-luminous sources. Non-luminous sources are those sources which do not possess their own light, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती. तो what we can say here, generally like there is the moon. कि मून कब चमकता है? जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो हमें रात के टाइम में दिखाई देता है. Then it used to shows to us. वो हमें कब दिखाई देता है? जब रात को रोशनी we can say sunlight when it falls on the moon. तो ये हमें उस टाइम पर दिखाई देता है. After that there is a book, table, chair. They all are said to be the. तो बुक, टेबल, चेयर सब पर जब लाइट गिरती है तो वो हमें दिखाई देते हैं. Here after that there is a medium. After that हम क्या कह सकते हैं कि what is a medium? Substance through which the light travels. कोई भी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, देन इट इज सेड टू बी अ मीडियम. देन अगेन मीडियम आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम, अनदर वन आर द ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एंड द थर्ड वन आर द ओपेक मीडियम. तो ट्रांसपेरेंट थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इजीली, देयर इज नो वी कैन से रिफ्लेक्शन बैक ऑफ द लाइट. कोई उसमें से जिसमें से जो है मैक्सिमम लाइट इट क्रॉसेस that particular medium. Suppose there is the air, water, glass. So there is that is the transparent medium. ये transparent medium होते हैं जिनमें से पूरी की पूरी लाइट क्या होती है? आसानी से गुजर जाती है. After that there is the translucent through which the light travels partially. यानी कुछ लाइट ही उनके अंदर से होकर गुजर पाती है. Here is the paper. पेपर में से हमें लाइट दिखाई तो देती है बट नॉट एग्जैक्टली क्लियर जितनी हमें हवा में दिन के टाइम पे जो लाइट हमें दिखाई देती है, हवा से जो दिखाई देती है, एज इट इज हमें पेपर से दिखाई नहीं देती. देन कलरफुल ग्लास. रेड कलर ग्लास वी आर हैविंग, ब्राउन कलर ग्लास वी आर हैविंग, ब्लैक कलर ग्लास वी आर हैविंग. लाइट हमें दिखाई देगी बट नॉट कंप्लीटली. इज इट क्लियर? After, so that's why what we can say those are the translucent medium and the opaque through which light cannot travel. ऐसा medium जिसके through light travel नहीं कर सकती. Suppose there is the wood. wood के अंदर से, लकड़ी के अंदर से light travel नहीं कर सकती. After that there is the metal. different types of metals. अगर हम कहें iron is there, steel is there, anything is there, कोई भी ऐसा metal जिसके through light travel नहीं कर सकती, then it is said to be the ओपेक मीडियम. तो बेटे ये था आपके लिए जनरल इंट्रोडक्शन. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस